हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं एडिट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। India is a part of my life. So my ambition is to be a great scientist. And as you know, I'm working on meteorites and these things which fall from outer space. We don't know much about them. I want to do something very original about them and maybe get my name in textbooks. What do you want me to do for the country? I think I'm doing enough by being an honest citizen. By doing my job to the best of my ability by working 8 hours a day. By not complaining much about the rations, about the unavailability of sugar. For some people, security is a warm blanket. For me, security is a government job. I would like to join the IAS. I don't get time to read books because I like to do activities. Or just play something or swim, dance. President of the Republic of India, Dr. Rajendra Prasad, arrives to take the salute at a march past. It's the first anniversary of the Declaration of the Republic, and detachments of India's forces march down Delhi's Kingsway, so named after King George V's Durbar visit. Just back from London, Mr. Nehru watches. He's taking a lead in trying to solve the Korea problem, but close at hand, India has her own big problem, Kashmir. Till that is settled, India and Pakistan are dangerously divided. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। जाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूम में बस्ती में। ये सीन साफ समझ ये कहते इमरान खान ने क्या कर दिया। इमरान खान लंगड़े ने क्या करना था। रुकता तो ये दोनों ने उसको सेट कर देता, करता कैसे हटते जो अब करना है।
भी नहीं अगर 1947 में सरदार पटेल ने एक खुली धमकी ना दी होती तो आज भारत के नक्शे से ये सबसे अहम हिस्सा हमेशा के लिए कट चुका होता। अंग्रेज भारत छोड़ तो रहे थे, लेकिन उनका सीक्रेट प्लान था कि अंडमान और निकोबार को भारत से अलग करके ब्रिटेन की एक परमानेंट कॉलोनी बना दिया जाए। वो पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते थे। हद तो तब हो गई जब जिन्ना ने भी इस खेल में अंग्रेजों का साथ दिया और अंडमान को ईस्ट पाकिस्तान में मिलाने का दावा ठोक दिया। लेकिन आयरन मैन सरदार पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन को साफ धमकी दे दी कि अगर अंडमान भारत को नहीं मिला तो वो सत्ता ट्रांसफर के किसी कागज पर साइन नहीं करेंगे। अंग्रेजों को डर के मारे पीछे हटना पड़ा। आज इसी अंडमान की बस्ते मलक्का स्ट्रेट की गर्दन पकड़कर बैठा है। अगर उस दिन पटेल ना अड़ते तो आज हमारे बिल्कुल नीचे चीन या ब्रिटेन का नेवल बेस होता। सरदार पटेल के इस मास्टरमाइंड फैसले पर आपकी क्या राय है? Indian descent and now has a permanent home in the heart of Seattle. A statue of the Swami Vivekananda was unveiled in Westlake Square Saturday. The life-size statue. मुझे मालूम है कि मैं अंग्रेज सरकार के दलाल के सामने खड़ा हूँ और अपने ही देश में Shortly after he was led by the front. Then they really did see quite long, even his knees. When he was speaking to the microphone, and so to his popular home, where we leave this bizarre little man, whose coming has caused so much comment, complete with loincloth, spinning wheel and goat's milk, feeling sure that he cannot complain of his reception or the publicity he has received, from which, by the way, we always understood that he shrank.
has three heads. One to be a murderer who will unleash death. One to be a monarch whose crown will weigh heavy. And one to be mad whose ideas will shape history. आज इसरो दुनिया भर में भारत की पहचान बन चुका है, लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि भारत के शुरुआती रॉकेट के हिस्से कभी साइकिल पर थंबा लॉन्च स्टेशन तक पहुंचाए जाते थे और आज वही अंतरिक्ष सफर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में ऐतिहासिक लैंडिंग तक पहुंच चुका है, सूर्य का अध्ययन कर रहा है और अब अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन भारत के इस असाधारण सफर की सबसे बड़ी ताकत कोई रॉकेट नहीं, एक इंसान की दूरदृष्टि थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी केवल दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का माध्यम है। शिक्षा, संचार और मौसम की सटीक जानकारी, इसी सोच ने भारत के स्पेस प्रोग्राम को दिशा दी। आज डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्म जयंती पर नमन उस दूरदर्शी वैज्ञानिक को जिसका विजन आज भी हर भारतीय मिशन के साथ उड़ान भर रहा है। अगर आपको भी भारत की इस उपलब्धि पर गर्व है तो इस रील को शेयर करें।
ऐसे ही यार बहुत कमाल के एडिट वीडियो थे, लेकिन भाई देखा जाए ना क्या एक जज्बा आता है, मतलब कि जब आप वो एक फोटोज और वीडियो देखते हैं ना, लेकिन सब भाई एक स्ट्रगल में रहे हैं। बाकी अगर सुभाष चंद्र बोस की भाई बात करें ना, तो उन्होंने बहुत चीजें मतलब की यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे पूरा ऊपर से घेर लिया था सारी चीजों को, मतलब कि पहले तो लंदन में जाकर सारा कुछ किया, फिर जर्मनी और हिटलर तक मतलब कि वो मिले हैं, हिटलर से भी। और उनकी भी एक स्टोरी भी काफी एक मतलब के वायरल थी। हिटलर काफी एक रूम में रहता था, जब उसकी फर्स्ट मुलाकात उसने बोला कि ये तो हिटलर है ही नहीं, कि असल हिटलर को लेकर आओ, तो वो काफी इंस्पायर स्टोरी थी। बाकी अगर बात करें ना तो भाई एक मजा आता है अगर इनकी मतलब कि आप रियल वॉइस सुने ना सब की, जो फ्रीडम फाइटर थे, तो आपके अंदर एक खुद ही वो चीज उभरती है कि यार इनकी वॉइस में कितना एक जज्बा था और एक जोश था कि आगे इनके मतलब के काम। तो एक अलग बात है जब आपके सामने एक भाई ब्रिटिश या गोरे खड़े और उनको आप ललकार से बोले कि जो करना है आप कर ले, जो सजा देनी है आप मतलब के दे सकते हैं, क्योंकि पता था भाई हमने लड़ना है तो ये चीज होनी है। पीछे हमारे जो लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, तब एक तो स्ट्रगल कर नहीं रहा था। तो भाई ये बहुत एक गर्व वाली बात है कि आप उन चीजों से निकले। और भाई आप देख लो मतलब कि 80 साल हो रहे हैं और इनका नाम है हम भी एक सुनते रहेंगे, आने वाली जो जनरेशन है, और मतलब कि इतने 1000 साल भी बीत जाएंगे ना, जब तक ये देश रहेंगे तब तक इनकी भाई वॉइस है एक उभरती रहेगी, खत्म नहीं होगी। शॉर्ट भाई वाकई बड़े कमाल के हैं। वो आजाद जी का सही था वो शॉर्ट, जिसमें वो एक जज को कह रहे हैं कि मैं, वो पूछते हैं कि आप खड़े किनके सामने, आपको पता है ऐसे ही, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया था कि मैं जो अंग्रेजों के दलाल के सामने खड़ा हूँ। तो देख लें कि इतना जज्बा उनके अंदर होता था कि वो भाई भरी सभा में उनके सामने ऐसा बोल रहे हैं। और फ्रीडम फाइटर की बात करें ना तो इन्होंने भाई बहुत कुर्बानियां दी हैं। मेन तो अगर देखा जाए तो हमारे भी फ्रीडम फाइटर जो हैं और हमें आजाद करवाने वाले भी यही हैं, पर हमारी तरफ इनको भाई याद ही नहीं किया जाता। ऐसे हर तरफ एक जंग हो रही थी, हाँ। मतलब कि हर तरफ लड़ रहे थे। छत्रपति शिवा महाराज भाई उन्होंने थोड़ी मतलब कि उधर लड़े हैं, उन्होंने वो सारा उधर तो 2-3 फौजें इकट्ठी हो गई थी। बिल्कुल यार, काफी अच्छे शॉट्स थे। और एक शॉट जो है ना वो बच्चों का जो एक बोल रहे थे, एक ब्रिटिश गुड्स है ना, इनका एक बाइकआउट करें 1920 में। देख ले यार कि एक बच्चों के अंदर भी इतना एक जोश था, और उनकी जो लुकिंग आप देख ले पूरी एक उन्होंने एक जैसे सैनिक नहीं होते ऐसे एक बनाई हुई है। और जैसे सुभाष चंद्र बोस ने एक ऊपर टोपी रखी होती थी वैसे ही एक बच्चों ने ली हुई थी काफी ज्यादा ने। हाँ, लेकिन ये कि एक जिन्होंने इसमें कोशिश की है ना वो आप देख ले, चाहे वो बच्चे थे चाहे एक वो बड़े थे, सबकी एक कोशिशों से ये एक चीज हो हुई है और गोरों को यहाँ से एक भगाया गया। बाकी काफी अच्छे शॉट्स थे भाई, शॉट बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ देखें कि सब ने मिलकर जद्दोजहद की है तो तब भी ये आज़ादी मिली है। और ये चीज़ देखें कि भाई अंग्रेज़ जब इंडिया को आज़ाद कर रहा था उस वक्त उसने शर्त रखी थी कि ये जो कंट्री साथ वाली है ये कंट्री जो है ना ये आपको नहीं मिलेगी। तो उस वक्त भाई वो इंडिया प्रेसिडेंट ने बोला था कि अगर ये नहीं मिलेगी तो फिर हम आज़ाद कहाँ से होंगे। तो उन्होंने भाई वो कंट्री इसीलिए अपनी बात पूरी मनवा कर फिर ही सारा कुछ क्लियर करवाया था। इस तरह भाई शार्ट बहुत प्यारे हैं कि ये देखें कि भाई आज़ादी पर शार्ट है और कमाल के शार्ट है भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई शार वाकई एक कमाल के थे। लेकिन इसमें भाई तकरीबन बहुत सारे शार्ट ऐसे थे जो जद्दोजहद के ऊपर थे। और देख लो 42 में काम एक स्टार्ट हो चुका था, यात्रा एक जो निकली थी ना भाई उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे और वो भाई भूखे रहे। और मतलब बहुत सारी ऐसी है अनगिनत आम एक साल जब मतलब ये आज़ादी का महीना आता है उसमें ये सारी चीज़ें सामने है। लेकिन जो है ना वो हर एक साल में भाई ये यादें ताज़ा हो जाती हैं और भाई ये कुर्बानियाँ सामने आती हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है, इससे भाई एक जो मतलब बच्चे हैं उनको भी पता चलता है कि भाई किस तरह एक मुश्किलात इस मुल्क ने देखी हैं। और वो थोड़ा अर्सा नहीं पहले भाई एक मुगल थे, उसके बाद ये गोरे आ गए। लेकिन गोरों से भाई एक बड़ी मुश्किल है छुटकारा हो, क्योंकि उन्होंने भाई एक सोच उनकी ये थी कि गुलाम बना के रखना है। लेकिन ओवरऑल शॉट अच्छे थे। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।